قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، پچھلے 2-3 جمعوں سے ہم نے دلوں کی حفاظت اور دلوں کے سکون سے متعلق عنوان شروع کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر تم نے اس کی اصلاح کر لی، اس کی حفاظت کر لی تو تمہارے پورے وجود کی حفاظت ہو جائے گی، پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح نہ ہوا، اس کی اصلاح نہ ہوئی، حفاظت نہ ہوئی، تو فرمایا تمہارا پورا وجود خطرے میں ہے، پورا وجود فساد میں ہے، پورے وجود کی اصلاح ممکن نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی بات فرمائی، غور سے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کی اصلاح، دل کی حفاظت، یہ پورے وجود کی اصلاح کے لیے بنیاد ہے۔ پورے وجود کی حفاظت اور اصلاح کا دار و مدار انسان کے دل کی حفاظت اور اصلاح پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، پھر آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اپنی امتوں پر محنت فرمائی، وہ دلوں کی محنت تھی کہ دل ٹھیک ہو جائیں۔ اسی لیے دل سے متعلق ہم نے کچھ احادیث کہ جس طرح دل ہمارا زنگ آلود ہوتا ہے، دل کیوں ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے، اس سے متعلق عرض کیا، اور پھر دل کی سیاہی کو مٹانے کے لیے اور دل کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، حدیث کی روشنی میں اسے بھی ہم نے عرض کیا۔ اور پھر دل میں سکون کس طرح آئے گا، پچھلے جمعے ہم نے اس عنوان پر بات کی۔ انسان کب ناکامی کی طرف جاتا ہے یا اس کا دل جو فساد کی طرف جاتا ہے، وہ کب؟ جب اس دل میں دنیا کی محبت آتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ خطبے میں پڑھی گئی، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، یعنی ہر فساد کی جڑ اور بنیاد یہ دنیا کی محبت ہے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو انسان کے دل میں پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت نہیں سماتی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کو دل کے اندر مت اتارو، دنیا ہماری اسباب کے درجے میں ضرورت ہے، لہذا ضرورت کے درجے میں اس دنیا کا حصول، دنیا کا تقاضا، دنیا کے لیے محنت کرنا، مال و متاع کے حصول کے لیے حلال اور جائز طریقوں سے محنت کرنا، اس سے منع نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اس دل کے اندر دنیا کو اور مال کی محبت کو اتارنا، اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت اتر جائے گی تو سمجھ لیں کہ بس وہیں سے پھر تمہارا دل ڈوبنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ دل سیاہ آلود ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہیں سے انسان ناکامی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبت، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دنیا کے حصول کو منع نہیں کیا گیا، دنیا کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں بسانے سے منع کیا گیا۔ وہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا کی لالچ اور دنیا اور مال کی لالچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا، امتی کہہ لیں ایک، یا مرید کہہ لیں، یا ان کا خادم ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے زاد راہ کے لیے 3 روٹیاں اپنے ساتھ رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ 3 روٹیاں اپنے زاد راہ کے لیے سفر کے توشے کے طور پر 3 روٹیاں ساتھ رکھی۔ چنانچہ کچھ سفر آگے بڑھا تو اس خادم نے خاموشی سے 1 روٹی تناول کر لی، وہ کھا گیا۔ جب ایک جگہ پر رکے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی وہ کھانا لے آؤ، روٹیاں لے آؤ، تاکہ یہاں کھانے کا وقت ہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب دیکھا تو اس دسترخوان میں جہاں 3 روٹیاں لپیٹی گئی تھی، وہاں پر 2 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اس نے 3 روٹیاں تھی، اب 2 ہیں، تو اس خادم نے قسم اٹھا کر حلفیہ کہا کہ میں نے نہیں کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے تھے، لیکن بہرحال نبی تھے، درگزر سے کام لیا، کہا کہ چلو بھئی ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا۔ اس کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک मामला यूं फरमाया कि कुछ दूर जाने के बाद पड़ाव किया और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 मट्टी की ढेरियां बनाई, मट्टी की 3 ढेरियां बनाकर कुछ कलाम पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए थे, जिंदा मौजज़ात अता फरमाए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा तो मट्टी की 3 ढेरियां सोने की ढेरियां बन गई, 3 ढेरियां सोने की हो गई, 3 की। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये 3 ढेरियां हैं, इसमें से एक ढेरी भाई तुम्हारी है, एक ढेरी मेरी है और तीसरी ढेरी उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। जब उस खादिम ने ये देखा कि ये तीसरी ढेरी तो उसके हिस्से में जा रही है तो इसके दिल में दुनिया का लालच जागा। फरमाया कि लालच से बचना चाहिए। उसके दिल में दुनिया का लालच जागा और उसने फिर एक और कसम खाई। पहले तो झूठी कसम खाई, अब एक और कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं कि वो तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। उस दुनिया को लेने के लिए, माल को लेने के लिए उसने फौरन पैंतरा बदला और कहा कि वो तो रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई अब ऐसा है कि ये 2 नहीं, ये 3 ढेरियां तुम्हें मुबारक हों। ये 3 सोने की ढेरियां तुम्हें आ गई, लेकिन यहां से तुम्हारा और मेरा रास्ता जुदा हो गया। अब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, ये 3 ढेरियां अब तुम्हारी हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चल दिए। उलमा ने लिखा कि यहां पर पहला नुकसान इस शख्स का क्या हुआ कि इसने दुनिया की लालच की, माल की मोहब्बत की वजह से पहले झूठ बोला और माल की लालच की, तो पहला नुकसान यह हुआ कि नबी की माहियत से महरूम हो गया। नबी का साथ मिल रहा था, नबी के साथ चल रहा था, नबी की खिदमत में था, लेकिन इस दुनिया की लालच और दुनिया की मोहब्बत ने इसने पहला अपना नुकसान यह कर लिया कि नबी की माहियत और नबूवत के साथ से महरूम हो गया। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने सफर की तरफ चले गए। थोड़ी देर के बाद, जब अभी तक ये अपनी ढेरियों को समेटने की सोच ही रहा था कि किस तरह इस सोने को मैं जमा करूं, इसी असरा में 2 डाकू वहां पर आ गए। कहीं से गुजर रहे होंगे, उन्होंने देखा कि एक शख्स बैठा है और उसके पास सोने की 3 ढेरियां हैं। आपस में सोचने लगे कि एक ही है, इसको तो आसानी से काबू कर लेंगे, इसको यहीं पर खत्म करते हैं और सोना इतना इस कदर इसके पास है, सोना हम ले लेते हैं इससे। वो भी समझ गया कि अब ये 2 डाकू हैं, अब यकीनन ये मुझे मारेंगे। इसने उनको कहा कि भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खुदारा मुझे मत मारो, ये 3 ढेरियां हैं, 2 आप हो, 1 मैं हूं, हम आपस में एक एक ढेरी तकसीम कर लेते हैं, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। उन्होंने सोचा चलो भाई क्या कत्ल करके करेंगे, चलो हमें एक एक ढेरी तो मिल रही है। चुनांचे आपस में सुलह हो गई और तीनों ने अपने अपने हिसाब से एक एक ढेरी अपने जिम्मे ले ली कि ये हमारी हो गई। खाने का वक्त आ गया, आपस में मशवरा करने लगे कि एक साथी चला जाए और करीब आबादी में जहां पर खाना मिले खाना खरीद कर ले आए, खाना खा लें, उसके बाद अपने अपने सफर की तरफ चल पड़ेंगे। चुनांचे उन 2 डाकुओं में से एक ने दूसरे को कहा कि ये पैसे ले लो और तुम फला जगह पर चले जाओ, 3 आदमी के खाने का बंदोबस्त करके आ जाओ। अब ये अकेला शख्स चला गया खाना खरीदने के लिए, काफी दूर चल कर गया, वक्त भी इसे लगा। फिर खाना जो खरीदना चाह रहा था, गर्मी का वक्त था, उसने खाना खरीदा। अब ये शैतान तो मौके की ताक में होता है। शैतान का सबसे बड़ा मकसद इंसान को तबाह करना, किसी भी तरह इंसान को बर्बाद करना, ये शैतान का सबसे बड़ा मिशन और उसका नजरिया। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कुरान ने कहा ये शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस शैतान ने अब इस मौके से फायदा उठाते हुए ये शख्स जो खाना खरीदने गया था, इसके दिमाग में ये बात डाली कि तुम इतना लंबा सफर करके उनके लिए खाना खरीद रहे हो और उसके बाद तुम गर्मी है, थक कर जाओगे और तुम्हें सोना तो उतना ही मिलेगा जितना उनको भी मिलेगा, तुम खामखा उनके खादिम बन रहे हो। ये शैतान उसको पट्टियां पढ़ा रहा है और शैतान उसके दिल में डाल रहा है क्यों ना तुम ऐसा करो कि यहां से कुछ जहर खरीद लो और इस खाने में वो जहर मिला दो, वहां जाकर तुम उन्हें पेश करना, वो खाना खाएंगे, दोनों मर जाएंगे, 3 ढेरियां तुम्हारी हो जाएंगी। शैतान ने उसको लालच सुझाई, चुनांचे उसने यही किया, वहां से जहर खरीदा और खाने में मिला दिया कि उन दोनों को भी मार दे और सारा सोना खुद ले जाए। अब ये वापस आ रहा, आने में इसे जरा ताखीर हो गई। शैतान ने अब वहां भी काम करना शुरू किया, यहां इसको पट्टी पढ़ाई और वहां पर शैतान उन दोनों डाकुओं के, उन दोनों बंदों के पास पहुंचा और जाकर कहा कि ये इतनी देर हो गई जो नहीं आ रहा, इसके दिल में लालच आ गया है, ये कोई ना कोई साजिश कर रहा होगा, यकीनन कोई ना कोई किसी के साथ मिलकर ये मंसूबा बना रहा है। खतरा ये लग रहा है कि ये किसी को लेकर आएगा और कहीं हम पर धावा बोलकर सारे सोने पर ये काबिज ना हो जाए, इसलिए हमें कुछ सोचना होगा। ये शैतान इनको बहका रहा है, लिहाजा शैतान के बहकावे में आकर दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि इससे पहले कि ये कोई इसकी साजिश और इसका मंसूबा कामयाब हो, इसको आते ही अपन दोनों मिलकर कत्ल कर देते हैं और फिर ये सोना आपस में तकसीम कर लेंगे।
चुनाचे यही हुआ। अब ये शख्स जब वापस पहुंचा तो इन दोनों ने कहा कि तुमने इतनी देर कर दी, क्या वजह थी? वो बताने लगा, भाई खाना खरीदा मैंने और गर्मी भी थी, सफर भी था। आपस में इनकी थोड़ी सी तकरार हुई, चुनाचे दोनों ने मिलकर इस शख्स को वहीं पर कत्ल कर दिया। दुनिया की मोहब्बत, माल की लालच के नतीजे में अपनी साथी को कत्ल किया। इसको कत्ल करके अब आपस में सोचा कि हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपना अपना सोना तकसीम करेंगे, अपनी अपनी मंजिल की तरफ फिर अगला प्रोग्राम कुछ बनाएंगे। उसको तो कत्ल किया। अब वो खाना जिसमें ये शख्स उनको कत्ल करने के लिए जहर मिलाकर लाया था और सब चीजों का नतीजा दुनिया। अब दोनों ने मिलकर जब खाना खाया, जहर आलूद खाना था, खाना खाते ही दोनों वहीं पर दुनिया को छोड़कर, दुनिया खत्म हुई, मर गए बेचारे दोनों। अब 3 लाशें वहां पर पड़ी हैं और 3 सोने की ढेरियां वहां पर पड़ी हैं। 3 शख्स जो इन सोने की ढेरियों के लिए जतन और कोशिश कर रहे थे, इन सोने की लालच में और दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे के कातिल बने, लेकिन किसी के भी हिस्से में नहीं आई। थोड़ी देर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस वहां से गुजर हुआ। जब देखा कि 3 सोने की ढेरियां पड़ी हैं और 3 इंसानों की लाशें पड़ी हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाय नास ए दुनिया तेरा, हाय नास ए दुनिया तेरा, ए दुनिया तूने इंसान को कहीं का ना छोड़ा। फरमाया, यह है दुनिया, जिस दुनिया की लालच में इंसान दूसरों का कातिल बन जाता है, दुनिया की लालच में इंसान हलाल और हराम को भूल जाता है, दुनिया की मोहब्बत में इंसान अपने अल्लाह को नाराज कर बैठता है। ये वाकया किताबों में लिखा। उलमा इकराम ने फरमाया कि इस वाक़े से पता चलता है कि जब हम फकत दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में बसाएंगे, माल की लालच करेंगे, तो उसका नतीजा ये नुकसान की सूरत में निकलता है। इंसान खुद भी तबाह होता है और अपने आसपास वालों को भी तबाह करता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। तो इस दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को बचाना है, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं उतारना। ये दिल अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मस्कन बनाया है। तो मैंने अर्ज किया कि दिल की हिफाजत के लिए जरूरी है कि दुनिया को दिल से दूर रखा जाए। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत तभी समाएगी और नबी अलैहिस्सलाम का इश्क तभी इस दिल में आएगा जब इस दिल की हिफाजत होगी और दुनिया को इससे दूर रखेंगे। जितना ज्यादा दुनिया की मोहब्बत आएगी, दुनिया की लालच आएगी, उतना ही ज्यादा इंसान अपने दिल को फसाद में डालता चला जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, जिस तरह हमें इस्लामी तालीमात में बतलाया गया कि असबाब के दर्जे में दुनिया का हसूल करना, माल के लिए जदोजहद और कोशिश करना और दुनिया के तकाजों को पूरा करने के लिए कोशिश करना, इससे मना नहीं किया गया। लेकिन हमारा जो दुनिया में आने का असल मकसद है, उसको फरामोश करना और दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसाना और दुनिया ही को सब कुछ समझ लेना, इस चीज से मना किया गया। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी और सहाबा इकराम ने जिंदगी गुजारी, ताबिईन तबा ताबिईन ने जिंदगी गुजारी और उन्होंने अपने मुआशरे में रहकर दीन के तकाजों को भी पूरा किया, दुनिया के तकाजों को भी पूरा किया। हमारे लिए वो मशाले राह हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहाबा इकराम तुम्हारे लिए मशाले राह हैं, इनमें से तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा इकराम ने दुनिया के सारे तकाजों को पूरा किया, लेकिन कभी भी इस दुनिया को अपने दिल में नहीं बसाया, इसलिए अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह ने दुनिया में ही उनको जन्नत की सनदें अता फरमा दी और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का ऐलान किया कि ये अपने अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह इनसे राजी है। तो खुलासा कलाम यह है कि हमें हर मोड़ पर, हर आन हमें यह देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। इसी में हमारी मुकम्मल कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।